بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر علی مرزا سے جو ہمارے اختلافات ہیں، علماء کے اختلافات ہیں، وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اب ایک فتویٰ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے، ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے۔ میں اس اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں، اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے، جہاں تک میری رسائی تھی، جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے۔ تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے۔ یہ شرم کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دے۔ انسانی جان کا قتل، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے۔ پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے، ہائی کورٹ کا کام ہے، جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے، اور اس بیس پہ جو بھی پاکستان کا لا ہے، قانون ہے، وہ نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ جی اٹھ کے قتل کر دیا جائے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بیسیوں اختلافات ہیں انجینئر علی مرزا سے، میرے کیا اہل سنت والجماعت کے علماء انجینئر علی مرزا کے عقائد کو درست نہیں سمجھتے، لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا، انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ہمارے ملک میں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کو علماء کا فتویٰ نہ سمجھا جائے۔ ایسا نہ ہو کل کوئی سرفرا اٹھے اور کسی انسان کو قتل کر دے گستاخی کی بیس پہ، بے ادبی کی بیس پہ، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور علماء بھی، جہاں تک میری رسائی علماء سے ہوئی ہے، وہ بھی اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو ملک میں امن کی کوشش کریں، اور دلائل کی دنیا میں رہ کے ہی بات کی جائے گی، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً کوشش نہ کریں۔ یہ جو ریسنٹلی فتویٰ آیا اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس فتوے کا کوئی سر نہیں بنتا، اور وہ پھر یہ ہے کہ ذرا سی کسی کی بات زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے نا، لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جنید جمشید کے ساتھ ہوا، مولانا طارق صاحب کے ساتھ ہوا، اور سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا، ہم تو یہ جو واقعات تھے ان کے زخم ابھی چاٹ رہے تھے کہ جناب ایک اور فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا کہ جی فلاں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو خدارا جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنون کی حد تک آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، پاکستان کا، اسلام کا امیج دنیا میں خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے ملک میں نقصان ہوگا اور قتل و غارت کا میدان گرم ہوگا۔ تو بالکل غلط ہے۔ لہذا میں ابھی نیچے آیا ہوں گھر سے اتر کے صرف اس کلپ کو ریکارڈ کروانے کے لیے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کا سوشل میڈیا پہ کوئی فتویٰ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو دیگر علماء سے بھی میرا مشورہ ہوا، تو سب کا یہی مشورہ تھا کہ ہمیں فوراً اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروانا چاہیے، اس فتوے کے خلاف۔ یہ علماء کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ حدیث کا ہے، اور نہ علماء کا فیصلہ ہے۔ اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو ملک میں ہر ایک کی جان محفوظ ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، یا کسی بھی فرقے سے، یا کسی بھی مذہب سے، کوئی بھی رائے ہو۔ دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ڈیبیٹ کریں، دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ایک دوسرے کو چیلنج دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو آئین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو لا کے ذریعے اس میں پنشمنٹ کی کوشش کی جائے، قانون کا سہارا لیا جائے۔ جج فیصلہ کرے گا کہ کیا سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے پاک فرمائے، اور اس شر سے اللہ تعالیٰ ہمارے کنٹری کو محفوظ فرمائے، اور عالم اسلام میں محبت اور اتحاد پیدا فرمائے، اور ہماری سب کی جانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور یہ جو مذہبی شدت پسندی ہے، اس شدت پسندی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی بولیں کہ اتنا آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں یا ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا جہلم والی سرکار اور ان کے مریدین ہمیں سمجھتے ہیں۔ اور ابھی میرا ایک کلپ آنے والا ہے ان قریب عدالتی خلا پہ، کیونکہ عدالتی خلا ان کا لیٹسٹ کلپ آیا، اس میں کہا کہ یہ کراچی کے مفتی بول رہے ہیں کہ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیوی کو نہیں دے سکتا۔ بھائی پھر آگے نا اسٹائل ہے۔ مجھے بتایا مردوں نے کہ ہماری بیوی نے انجینئر صاحب کا کلپ سنا ہے، 5 بچوں کے بعد جا کے عدالت سے خلا لے رہی ہے وہ، اور کہہ رہی میرے پاس بھی حق ہے کیونکہ اس کو وسیم پسند آ گیا۔ اب جہلم والی سرکار یہ کہتی ہے کہ حرام ہے ایسے خلا لینا، لیکن ہو جائے گا۔ بھائی جب اس کو بندہ پسند آ گیا نا تو پھر حلال حرام نہیں دیکھا جاتا۔ عشق جب بھوت سوار ہوتا ہے نا تو پھر اچھے پھسل جاتے ہیں۔ یہ ہم ججوں کے غلام اور لونڈیاں ہیں کہ جج ہماری بیوی کو بھی جب چاہے طلاق دے دے؟ ایسا تھوڑی ہے۔ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو حوالے تو دینا ہے نا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ مفتی تھوڑی ہے، مفتی صاحب چھوڑو اس کو، کون مفتی کون عالم، ریفرنسز تو دے رہا ہے نا، یہ لوگوں کی دلیل ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ ریفرنسز عربی میں اس کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ترجمہ تو لکھا ہوا ہے نا، پھر وہ نیٹ سے ہٹوا دو ترجمہ۔ ہم وزیر اعظم نہیں بنا سکے 1 مہینے تک، جو ہمارے لیے ترجمے سے زیادہ ضروری ہے، تو ہم وہاں سے کہاں سے ہٹوا دیں؟ تو کہہ رہے نہیں حوالے کا کیا ہوگا، وہ جو حوالے دے رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا بھائی جہلم گیا تھا تو میرے سامنے دے دیتا نا حوالے۔ کہہ رہے نہیں کوئی حکمت ہوگی نہیں آئے، تو میں نے کہا بلایا، کہہ رہے غلطی ہو گئی بلایا آپ کو نہیں آیا، حوالے تو ہے نا۔ علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں، تمہارے مرے ہوئے بزرگ اور زندہ بزرگ ان کے سارے دلائل فیل ہو گئے جس بندے کے سامنے، اسے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں سورہ فاتحہ ہی اتنی روانگی کے ساتھ نہیں آتی جس طرح مجھے قرآن و سنت کے دلائل ازبر یاد ہے الحمدللہ۔ نا
स्टाइल है। मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवा दी है अदालती खुला पर। वो झेलम वाली सरकार जो है ना, वो फूंको वाली सरकार से भी बड़ा मसला है। वो उसने ये कहा है कि अदालत एक तरफा खुला दे सकती है, अदालत या तो मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरा झेलम वाली सरकार के भी चलाए है। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा रिएक्शन किया है, और ये मैंने झेलम वाली सरकार ही की बातों की वजह से किया है। क्योंकि झेलम वाली सरकार जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो तो उटपटांग मसाइल बता ही रहा है बेचारा। उसको ना कुरान का पता, ना हदीस का पता, ना फिक़ा का पता, ना इजमाए उम्मत का पता। और किसी एक जगह झेलम वाली सरकार टिकती नहीं है। अपने ही दावों में तजाद, एक जगह एक दावा, अगली जगह दूसरी दावा। तो लगता है कि उसका काम सिर्फ बौखलाहट फैलाना है। तो ठीक है, आप करते रहो, मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करो। आप, मैंने बहुत दफा समझाया, मेरा नाम मेरा कितनी तस्वीर ला रहे हो, लेकिन झेलम वाली सरकार को समझ में बात आ नहीं रही। उसका नतीजा निकला मैं झेलम चला गया, उनने बनाने फिर भी वो मार्केट से शॉर्ट। मैंने कहा किस्सा खत्म जाए ना, ताकि तो मैंने समझा किस्सा खत्म हो गया। क्या कर गया है, आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, बैठेंगे जब आपका टाइम होगा, उसी वक्त बैठे, आप बताते हैं तैयार हो। तो उस पर भी नहीं रिस्पॉन्स दिया। फिर झेलम वाली सरकार ने कहा कि आप जो है वो ऑनलाइन आ जाओ। मैं फौरन तैयार हो गया। मैंने कहा ठीक है, शर्त कर लेते हैं। झेलम वाली सरकार ने कहा हम मंगोल हैं, हम शर्तें नहीं रहा, धड़ थल्ले, तीन बातें कही। फिर उनका जो रिएक्शन आया था ना, वो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। धड़ थल्ले, हम मंगोल हैं, शर्तें क्यों दो, बगैर शर्तों के डिबेट होती है, मुंहों की लड़ाई होती है। वो बहस, कोई बहस कभी बगैर शर्त के, आपको ये शर्तें ला रही है कि दोनों गुटके खा के बैठेंगे या तवे बैठ के पास होगा, और तवा कम से कम डिग्री कम होना चाहिए। नॉर्मल शर्तें, कितनी देर डिबेट होगी, टॉपिक क्या होगा, आप कितनी देर बात करेंगे, मैं कितनी देर बात करूंगा, सालसी का किरदार कौन करेगा, ये शर्तें हमने तय करनी थी। उन्होंने कहा कि शायद ऐसी शर्तें हैं कि हम तवे बैठे चूल्हे पे बहस हो, तो शर्तें क्यों लगते। फिर मंगोल, हालांकि मंगोल तो से हनफी थे, तभी वाली सरकार के बाप दादे पदादे सारे हनफी निकल गए। हनफियों की वजह से आप इस्लाम मिले। अब्बा भी हनफी, दादा भी हनफी। अगर अब्बा बिल्कुल अहले हदीस, दादा तो हनफी होंगे, दादा बगैर अहले हदीस, परदादा तो पक्के हनफी। आपका तो सारा इस्लाम हनफी सबको मिला है भाई। अरे सगीर में तो थी हनफी, बाकी दुनिया में शाफी हम बनी है, इसी तरह ही है। तो जो मंगोल भी सारे हनफी हैं, और जो इंडोनेशिया चाइना वो भी हनफी है। कहीं क्या शाफी मिल गया, मेजॉरिटी उनमें भी मंगोल मुसलमान सारे हनफी हुए। वो तो धाड़ थल्ले का मतलब मुझे पहली दफा मैंने सुना, धाड़ थल्ले। अभी तक मुझे इसका मतलब नहीं पता धाड़ थल्ले का मतलब क्या है, लेकिन क्योंकि वो रिएक्शन हुआ ना उससे, तो मैं समझ रहा हूँ जब भी कहीं गुस्सा आए तो धाड़ थल्ले। अब पूरे दिन के बाद से मुझे जब गुस्सा आता है ना अपने साथी में, धाड़ थल्ले, मुझे नहीं पता इसकी मतलब है, लेकिन इसका मतलब जब बहुत गुस्सा रहा धाड़ थल्ले, ये लैंग्वेज सीखने का किसी तरीका पता नहीं। तो कभी झेलम में मुलाकात हुई तो पूछूंगा धाड़ थल्ले का असल मतलब क्या है। मैं थोड़ा जानता, पंजाबी तो नहीं आती ना मुझे। तो अब जब हमारी सरकार का काम ये था, क्या झेलम से गया भाई, जो इज्जत होनी थी आपकी हो गई, खत्म करो, चुप करो, इस टॉपिक को खत्म करो, आपने जो करना है करो। आपने फिर ऑनलाइन मुनाजरे का चैलेंज कर दिया, मैंने ऑनलाइन मुनाजरे का चैनल कबूल किया। फिर आप पीछे, फिर आपने दोस्ती का डाल लिया, मैं खुश हाउस में, चलो यार ये भटकिया होना चाहिए, खत्म। आपका नजरिया ठीक है, फैलाते रहो, जिसमें अकल होगी वो खुद ही समझ जाएगा कौन सही है कौन गलत है। ठीक है भाई, बात खत्म हो गई थी। मैं चुप करके बैठा हुआ था ना इतने सालों से, फिर वही मेरा तस्वीरें, फिर वही मेरे क्लिप। अब मैंने अगर आपका नाम लिया था ना किसी में, तो वो आपने पहले लिया, उसके बदले में मैंने नाम लिया है आपका। वो कह सकता है कि मुफ्ती साहब ने पहल की है, वो आपने पहल की, उसके बाद मैंने जवाब दिया है, फिर आपने पहल की। तस्वीर में खुद अपने चैनल पे नहीं तो अपने शागिर्दों को लगाया हुआ है। तो इसलिए फिर मैंने कहा भाई ये दो तो हो गए, एक झेलम जाके आ गया, एक ऑनलाइन हो गया, अब एक तीसरा रह गया कि उसी तरह से रिएक्ट करवाओ झेलम वाली सरकार का। पहले मैं रिएक्ट जो करवाता था ना, सरकार के क्लिप नहीं लगाता था मैं, उससे क्या होता था, सरकार मेरी बात को गलत रुख पे ले जाते थे। अब मैंने क्या किया, पहले सरकार का क्लिप चलेगा, फिर मैं बताऊंगा ये जो हदीस का तर्जुमा कर रहे हैं, ये तर्जुमा ये बनता नहीं। ये सरकार ने जो हदीस पेश की है, पूरी हदीस ये नहीं, पूरी हदीस यूं है। सरकार जो कह रहे हैं मैं फलां को मानता हूं, तो सरकार फलां को नहीं मान। फलां का ये इरशाद है जिसको सरकार ने तोड़ मोड़ के पेश किया है, तो सरकार को चाहिए चुप हो जाए। अच्छा, सरकार के में जैसा अल्लाह ने कॉन्फिडेंस दिया ना गलत बातों पे, ऐसा ही इनके मुरीदों में भी कॉन्फिडेंस है। इनके मुरीद समझते हैं कि झेलम वाली सरकार जैसा इस कायनात में कोई कुरान और सुन्नत को जानने वाला पैदा हुआ ही नहीं। ये बहुत ज्यादा खुशफहमियों में है, और मेरे बारे में पता है नहीं, फिर कहते हैं अपने बाबों का दिफा कर रहे हैं। तो खुला का मतलब क्या हुआ अगर औरत को हक नहीं है? तो मैंने कहा यार, क्योंकि ये इतना खतरनाक मसला है कि इसकी वजह से फैमिली सिस्टम टूट रहा है। मेरे पास खवातीन मुझे बताया मर्दों ने कि हमारी बीवी ने इंजीनियर साहब का क्लिप सुना है, 5 बच्चों के बाद जाके अदालत से खुला ले रही है वो, और कह रही मेरे पास भी हक है क्योंकि उसको वसीम पसंद आ गया। अब झेलम वाली सरकार ये कहती है कि हराम है ऐसे खुला लेना, लेकिन हो जाएगा। भाई जब उसको बंदा पसंद आ गया ना, तो फिर हलाल हराम नहीं देखा जा रहा। इश्क जब भूत सवार होता है ना, तो फिर अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। तो ये तकल्लुफ की क्या जरूरत है कि गुनाह मिलेगा लेकिन हो जाएगा? भाई होगा ही नहीं, क्योंकि जिसकी बीवी है वो छोड़ेगा तो होगा, जज की बीवी थोड़ी है। अजीब सी बात है यार, हम जजों के गुलाम और लौंडियां हैं कि जज हमारी बीवी को भी जब चाहे तलाक दे दे, ऐसा थोड़ी है। तो इस पे मैंने दलाइल दिए, अभी इंशाल्लाह वो मेरा क्लिप आ जाएगा पूरे रेफरेंसेस के साथ। वो पहला क्लिप होगा जो इस तरह से मैंने इंजीनियर के क्लिप मैंने उसको छोड़ा हुआ था कि यार छोड़ो, जाने दो यार, क्या बिला वजह एक नया टॉपिक यूट्यूब पे शुरू हो जाएगा और आवाम के जिम्मे वो उलमा से मसले पूछे। अगर वो झेलम वाली सरकार से पूछ रही है तो अल्लाह खुद उनसे
उनसे पूछ लेगा क़यामत के दिन कि भाई डॉक्टर से मेडिकल साइंस की बातें पूछी जाती हैं। देखो हजरत हकीम साहब रहमतुल्लाह बड़ी प्यारी बात करते थे कि टमाटर किसके पास से मिलता है? टमाटर वालों के पास। ऐसा ही है ना? गोश्त किसके पास से मिलेगा? गोश्त वालों के पास से। प्रॉपर्टी कहां से मिलेगी? स्टेट एजेंटों के पास से। ऐसा ही है ना? कभी ऐसा हुआ कि टमाटर वाले के पास आप गए, मुझे बकरे का 3 किलो गोश्त दे दे तो फरमाते थे इल्म अल्लाह कहां मिलेगा? अल्लाह वालों के पास। कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत होती है, उनके पास बैठ के क्या पैदा होगा? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह आएगा। और इल्म कहां मिलेगा? उलमा के पास मिले। समझते हो? जिन्होंने, और इनमें हर एक प्रॉपर वे में चल के नॉलेज हासिल की हो तो होगा। डॉक्टर किसको कहते हैं? मेडिकल साइंस का माहिर, चंद किताब में पढ़ के नहीं होता, प्रॉपर वे में इल्म हासिल किया हो। हकीम किसे कहते हैं? प्रॉपर वे में हिकमत का इल्म हासिल किया हो। होम्योपैथिक डॉक्टर कौन होता है? प्रॉपर वे में बाकायदा उसने कोर्स किया हो, सिलेबस है, निसाब है, उसमें अरबी ग्रामर है, उसमें फिक़ा है, उसमें हदीस है, इजमाई उम्मत है, फुक़हा के इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात में हर एक के पास क्या क्या दलील है, उसका मुज़ाकरा है, उसका बहस मुबाहिसा है, उसके बाद इंसान एनालाइज करता है, फिर हर मसले को उसकी वैल्यू देता है अमल के लिए कोई इख्तियार करता है, और बाकी जिसकी जो वैल्यू है वो उसको देता है। तो ये पूरा ऐसे थोड़ी उठ के यार कोई भी उठ जाए और जनाब वो जाके फतवा देना शुरू कर दे। तो मैं सोचता था हमें क्या बोलने की जरूरत है भाई, हमारे और भी काम इतने, तो इनके पास तो टाइम बहुत है ना, एक एक हफ्ता यही एक ही टॉपिक पे तैयारी होती रहती। मेरे तो सुबह जामिअतुल हिंद में पढ़ाता हूं मैं, फिर उसके अलावा मेरे बयानात जो इस्लाही बयान है, लोगों को जिना से रोकना, घरों में जो मसाइल खड़े हो रहे हैं, हर तरह के मसाइल ना, 20 किस्म के लोग सुबह शाम मसाइल पूछ रहे होते हैं, तो मेरे पास टाइम कहाँ था। लेकिन बहुत ज्यादा हो गया, मैंने कहा यार अभी खुला में भी ये मसला कर दिया, उतना बड़ा मसला, जिना के दरवाजे आप लोगों के लिए खोल रहे हो, और ऐसा इजमाई मसला जिसमें किसी का इख्तलाफ ही नहीं है, उसमें आप लोगों को इतना मिसगाइड कर रहे हो, और अमली तौर पर उसकी खराबियां भी सामने आना शुरू हो गई हैं। लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई ये दुख हवाले तो देना है ना। मैं कह रहा हूँ ये मुफ्ती थोड़ी है, मुफ्ती साहब छोड़ो इसको, कौन मुफ्ती कौन आलिम, रेफरेंसेस तो दे रहा है ना, ये लोगों की दलील होती है। मैं कहता हूँ वो रेफरेंसेस अरबी में है, उसका उर्दू तर्जमा सही है या गलत है ये आपको पता है? कह रहे हैं भाई तर्जमा तो लिखा हुआ है ना, फिर वो नेट से हटवा दो तर्जमा। हम वजीर आजम नहीं बना सके 1 महीने तक, जो हमारे लिए तर्जमे से ज्यादा जरूरी है, तो हम वहां से कहां से हटवा दें? आज एक डॉक्टर साहब ने कहा कि यूट्यूब पे ना एक 2 नंबर डॉक्टर है, 2 नंबर, कितना लोगों को मिसगाइड कर रहा है वो। उन्होंने कहा वो डॉक्टर है ही नहीं, कितना गलत गाइड कर रहा है। मैं नहीं बताऊंगा क्या, क्योंकि जो जिन लोगों का काम है वो कर नहीं रहे, तो हम थोड़ी कर सकते हैं काम। तो मैंने कहा भाई आप केस करें। कह रहे कौन केस करे? गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है उसमें, भत्ता जा रहा है उनके पास, पैसा जा रहा है उनके पास, तो खुद वो जो है ना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है, जो गवर्नमेंट में 2 नंबर लोग होते हैं वो खुद सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो सऊदी अरब में होता ना तो फौरन केस हो जाता, भाई आप प्रॉपर वे में इल्म हासिल नहीं किया, आपको कैसे, किसने फतवा देने की इजाजत दी है? तो आप बैठ जाओ आराम से। सऊदी अरब में या किसी गैर मुस्लिम कंट्री में, मैं जब मस्कत गया ना तो मेरे मस्कत वालों ने बयान रखवाए वहां पे, तो वहां ऐसी अंधेर नगरी नहीं है, जो भी जाए बयान करना शुरू कर। तो वहां की गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि ये बयान कर, गवर्नमेंट ने कहा इसकी क्या दलील है कि ये आलिम है, तो प्रॉपर वे में इल्म हासिल किया है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो हमारे जामिअतुल रशीद से जहां जहां इदारों से मैंने पढ़ा सारे सनदें उठा के हमने भेजी हैं, उन्होंने उसकी तस्दीक की, उसके बाद मुझे परमिशन मिली है वहां बयान करने। फिर भी मैं नहीं कह रहा कि जो भी सर्टिफाइड आलिम होते हैं वो सारे सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, 2 नंबर भी होते हैं, लेकिन 2 नंबरों की वजह से ये तो नहीं कि अब दीन का इल्म आप उलमा के अलावा आम लोगों से हासिल कर लें। 2 नंबर डॉक्टरों की वजह से आप ये कहो कि अब हम इलाज मैकेनिक से करवाएंगे। भाई 2 नंबर डॉक्टर अगर होते हैं तो 1 नंबर के पास जाओ आप, लेकिन इलाज तो डॉक्टरों ही से होगा ना। तो ये बात लोगों को उसूल समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे नहीं हवाले का क्या होगा, वो जो हवाले दे रहा है। मैं कह रहा था भाई जेहलम गया था तो मेरे सामने दे देता ना हवाले। कह रहे नहीं कोई हिकमत होगी नहीं आए। तो मैंने कहा बुलाया, कह रहे गलती हो गई, बुलाया आपको नहीं आया, हवाले तो है ना। मैंने साथियों से मशवरा किया, मैंने कहा इंजीनियर साहब चुप भी नहीं हो रहे हैं, हमारा नाम भी हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके फैंस जो है हमारी तस्वीरें लगा भी रहे हैं, और फिर मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन इमेज बहुत, मैसेज बहुत बुरा जा रहा है। मेरी बदनामी नहीं है, बदनामी उलमा की हो रही। और जो अवाम इसमें, उन साहब ने कहा ना मेरी बीवी खुला ले रही है, तो उसका ये जज्बात है, गोया मुझे बुरा कह रहा हूं कि अल्लाह आपसे पूछेगा क़यामत के दिन, आप लोग क्यों रिकॉर्ड नहीं करवाते, क्यों उसका जवाब नहीं देते। पर मैंने कहा यार खुला पे तो करो। तो मैंने अभी खुला पे रिकॉर्ड करवा दिया है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, 1-2 दिन में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। आप लोग उसको, उसमें दलाइल से पहली दफा मैंने इस तरह से रिएक्शन करवाया। उसमें इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन बाबों का इल्म जानता है और कौन कुरान और सुन्नत का इल्म जानता है। समझते हो कि नहीं समझते? मेरा दिल नहीं चाह रहा था इंजीनियर साहब से मैं उलझूं, तो लेकिन इंजीनियर साहब नहीं चुप होके, वो अपनी हुदूद से तजावुज। और मैं ये नहीं कह रहा इंजीनियर सारे काम ही गलत किए हैं, कुछ काम सही भी किए हैं भाई। बिदतियों के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया इंजीनियर साहब ने, तो वो करते रहते, बहुत हम भी अप्रिशिएट करते, कहते शाबाश, कदम बढ़ाओ, अच्छी बात है, ठीक है ना। आपने तो और ही ज्यादा जाके जो है ना अपनी एक्सट्रीम लेवल पे आप चले गए और 1 मैन शो बनने की कोशिश कर रहे हो। आपके सारी सब कुछ आप ही को पता है, बाकी सारे क्या खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, बाकी सब पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं। कैसर राजा साहब ने किया इंजीनियर के खिलाफ, तो वो भी हमारे खाते में डाल दिए, इनको मौलवी पट्टियां पढ़ा रहे हैं।
تو मौलवियों से आपको इतनी नफरत है यार। जो आदमी मौलवी नहीं है वो गवाही दे रहा है कि भाई इंजीनियर ने यहाँ खयानत की है, तो बजाय दलाइल से उसका जवाब देने के वो भी किसके खाते में डाला जा रहा है? हमें बुरा भला कहा जा रहा है, ये जामित रशीद आए और इनके इन मौलवियों से। अल्लाह की कसम, हमने तो इंजीनियर को कैसर राजा को कुछ नहीं कहा कि आप इंजीनियर के खिलाफ काम करो और आप जो है ये करो। हमें भाई जो कर रहा है करे, नहीं करना है नहीं करो, हमारा तो अपने मसाइल इतने हैं वो नहीं खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर अली मिर्जा से जो हमारे इख्तिलाफात हैं, उलमा के इख्तिलाफात हैं, वो सारी दुनिया को मालूम है। अब एक फतवा आया है सामने जो बड़ा फैलाया जा रहा है, एक मौलाना साहब की तरफ से फतवा दिया गया कि जी इंजीनियर साहब का कत्ल जायज है। मैं इस अपनी दीनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम इस फतवे से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं।